Hi friends, good evening. We are back with Accounts Hub. I'm Sunil Arora. Let me take you through the process accounting of sales transactions. Now, we already know the process of accounting. What do? We record all the transactions in the journal first. और journal क्या है ये सब हम देख चुके हैं कि journal is a register where we maintain chronological order record of financial transactions which have happened. That means date wise जो financial transactions हो रही हैं उनको हम record करते हैं. That is what a journal is. So journal is the book of first entry. But then to analyze the transactions, वो journal से analyze नहीं होती. Journal just gives us a date wise record of all the transactions which have happened. उसको हम लेजर पोस्टिंग में कन्वर्ट करते हैं. वी विल मेक लेजर आउट ऑफ इट. और लेजर में वी मेक पर्सनल अकाउंट्स, वी मेक नॉमिनल अकाउंट्स एंड वी मेक रियल अकाउंट्स. आई मीन द अकाउंट्स तो बहुत सारे बनाते हैं लेकिन उनको दे कैन बी कैटेगराइज इनटू दीज थ्री कैटेगरीज. पर्सनल अकाउंट्स में डेबिट बैलेंस मीन्स द पर्सन ओज अस दैट मच मनी. अ क्रेडिट बैलेंस मीन्स दैट वी ओ हिम दैट मच मनी वॉट एवर द बैलेंस इज. Nominal account में debit balance means that we have incurred an expense under that particular head, and nominal account में credit balance means that we have earned that much income. Real account में we will have debit balance which means we possess that particular asset. उतने पैसे हमारे पास हैं. This is the basic process of accounting. Now ये हमने देख चुके हैं. बाकी I'm sure you've seen in the other sessions which we have had up till now. Now if you remember I said that all are businessmen. अब मुझे ये बताओ बिजनेसमैन का ऑब्जेक्टिव क्या है. व्हाट डू योर बिजनेसमैन वांट? ऑब्वियसली टू मेक मनी, टू अर्न इनकम, टू अर्न प्रॉफिट्स. वो प्रॉफिट्स कैसे अर्न करेगा? बाय मेकिंग सेल्स. सो द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ अ बिजनेस इज टू मेक सेल्स इन वॉट एवर प्रोडक्ट वी आर डीलिंग. जिस भी प्रोडक्ट में हम डील कर रहे हैं उसकी सेल करना इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, टू अर्न इनकम, टू मेक मनी आउट ऑफ इट. Now we are talking of sale of goods, not fixed assets. Sale of goods का मतलब we have already seen goods हम उसको कहते हैं जिस प्रोडक्ट में हम डील कर रहे होते हैं उसको हम कहते हैं goods. So अब सेल करने के लिए we make a sale invoice और a sale bill. I'm sure आप लोगों को sale invoice, sale bills अब तक familiar हो चुके होंगे. Go anywhere, you go to a restaurant, you go to McDonald's, he'll give you a small slip, that is a sale invoice. इसी तरीके से you go chase something, you purchase a shirt, you get an invoice, that is a sale bill, sale invoice. So sale invoice, sale bills you are familiar with. Now broadly if you classify, sales generally happen either it is a credit sale or a cash sale. Now when you are going as a customer, most of the time you will be paying cash and purchasing the things. So these are cash sales for that particular business enterprise. On the contrary, when business to business dealings happen, most of them happen on a credit. That means we sell the goods on credit and the payment against those goods is received later on, maybe say 30 days credit, 45 days credit, 60 days credit, depending upon the understanding between various enterprises who are carrying on that particular business. So now sales can be looked at it from a different perspective also. आजकल कॉन्सेप्ट आप लोग यू मस्ट बी रीडिंग अबाउट इट और यू मस्ट बी लिसनिंग अबाउट इट. दे से इट इज़ B2C. व्हाट डू वी मीन व्हेन वी से B2C? इफ अ बिजनेस इज मेकिंग सेल्स डायरेक्टली टू द कस्टमर, दैट मीन्स बिजनेस टू कस्टमर. सो B2C, बिजनेस टू कस्टमर सेल कर रहा है, दैट इज नोन एज B2C सेल्स. एंड अगर वो बिजनेस टू बिजनेस सेल करता है देन इट इज नोन एज B2B सेल्स, B2B सेल्स. सो दैट इज अनदर क्लासिफिकेशन विच इज पॉसिबल. And very simple examples are, let's suppose look at a car. Now a Maruti car customer is purchasing. So Maruti is doing business, B2C business. That means they are catering to the customers. On the contrary, Maruti has huge number of vendors जो कि Maruti को various parts supply कर, जैसे Apollo Tyres है, JK Tyres है. They all supply tires to Maruti. Similarly, huge number of suppliers are there. वो सब B2B business कर रहे हैं because they are selling it to the business. वो उनका भी business है and they are giving it to Maruti which is also carrying on a business. Okay, this is some of the things. Now जब हम सेल करते हैं या क्रेडिट सेल करते हैं तो हम इनवॉइस या बिल जनरेट करते हैं. अब अभी तक जो हमने सिस्टम देखा है रिकॉर्डिंग का, उस रिकॉर्डिंग के हिसाब से हम उसको जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं. जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद देन वी लेजर पोस्टिंग, जिस लेजर पोस्टिंग के अंदर वाज अकाउंट इज डेबिटेड विद दैट मच अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट इज क्रेडिटेड विद द अमाउंट ऑफ सेल व्हिच वी हैव मेड. दिस आर द बेसिक थिंग व्हिच वी हैव डन अप टिल नाउ.
अब अगर सेल्स आर से वी आर मेकिंग 10 इन अ मंथ, हम ये कर सकते हैं, वी कैन कंटिन्यू टू फॉलो दैट पर्टिकुलर सिस्टम. बट इन केस आवर सेल्स आर वेरी लार्ज, say for example instead of 10 we have 100 sales per day, instead of 100 we have 2000 sales per day, and believe me there will be businesses who are doing much more than 2000 sales also per day, who have presence all over the country. बहुत सारे चेन स्टोर्स हैं जिनकी बहुत सारे बिजनेसेस हैं ऑल ओवर द कंट्री, बहुत सारे स्टोर्स हैं ऑल ओवर द कंट्री. सो दे आर डूइंग लॉट ऑफ बिजनेस. So every day they are making hundreds and hundreds of sales, thousands of sales they are making every day. Ab now passing journal entry for each sale, debiting the customer account and then doing a ledger posting उसका credit sales account को करना, this system becomes very cumbersome. So we thought इसको कुछ easy कर लें, because sales तो मेन सबसे ज़्यादा तो सेल ही करता है, कोई भी बिजनेस है वो सबसे ज़्यादा सेल्स ही करता है, जो क्वांटिटी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन जो है सबसे ज़्यादा सेल्स में होती हैं. सो जब वो सेल्स की ट्रांजेक्शन हमारी बहुत ज़्यादा हो रही हैं, so we must have some better way of recording sales, and specifically we are talking of credit sales here of the goods in which we are dealing. We are not talking of sale of fixed assets या other things, we are only talking of goods in which we are dealing, जिसमें वो business enterprise deal कर रहा है, उसकी बात कर रहे हैं हम ये. So उसके लिए what we do is all sales are recorded not in the usual fashion which we have seen the process of accounting, उसको हम थोड़ा सा modify कर देते हैं. अब क्या modify करते हैं इसको हम जरा एक example से समझते हैं. So let's take a sample of these four sales we are making. These four sales are, we have made a sale to Robert and Company for 10,000 rupees, MNC Corporation by invoice number 1002, we have sold it to MNC Corporation 25,000 rupees का sale किया हमने. XN Company invoice number 1003 we have raised for 8,000 rupees, sale किया उनको हमने. And invoice number 1004 we have sold it to P. John and Sons for 32,000 rupees. These 4 transactions को हम करते हैं. So up till now what we have seen is that we will pass journal entries for this. Journal entries बहुत simple हैं इसकी, credit sales हैं. We have already seen Robert and Company account debited 10,000 to sales 10,000. Second journal entry होगी MNC Corporation account debited 25,000 to sales 25,000. XN Company account debited 8,000 to sales 8,000 and P. Johns and Sons डेबिटेड 32,000 टू सेल्स 22,000. सो ये चारों हम जनरल एंट्री पास करते हैं. अभी हम 4 का सैंपल ले रहे हैं सिर्फ. देन वी डू लेजर पोस्टिंग ऑफ दिस. आपको जर्नल से लेजर पोस्टिंग आती है बिकॉज यू ऑलरेडी डिसाइडेड किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है. सो वो सब आप सीख चुके हो. सो आई एम नॉट गोइंग इन टू द डिटेल्स ऑफ दैट अगेन. सो इसकी लेजर पोस्टिंग करेंगे. सो ईच इंडिविजुअल जर्नल एंट्री वुड बी पोस्टेड ऑन द डेबिट एंड क्रेडिट अकाउंट्स विच विल बी इन दिस मैनर विच यू ऑलरेडी फेमिलियर विद. नाउ अब ये एज आई हैव ऑलरेडी सेड, अगर ये 4 ट्रांजेक्शन्स हो तो वी कैन रिकॉर्ड इट लाइक दिस. बट अगर ये 400 ट्रांजेक्शन्स हैं या 4000 ट्रांजेक्शन्स हैं इस टाइप की, देन एवरी टाइम पासिंग अ जर्नल एंट्री उसकी डबल एस्पेक्ट को लेजर पोस्ट करना बिकम्स वेरी कम्बरसम. सो वी थॉट ऑफ एन ईजियर मेथड. और ये क्या ईजियर मेथड है? वी प्रिपेयर सेल्स बुक. अ सेल्स बुक हैज़ प्राइमरीली दीज 5 कॉलम्स इन द सेल्स बुक. नाउ इस सेल्स बुक के अंदर वी हैव कॉलम फॉर डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो एंड अमाउंट. ये 5 कॉलम हैं इस सेल्स बुक के अंदर. सो व्हाट वी डू इज इंस्टेड ऑफ रिकॉर्डिंग इट इन द जर्नल, हम जो ये सेल्स हैं इसको हम सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर देते हैं. अब इस सेल्स बुक को जो हम रिकॉर्ड करना है, इट इज़ अ वेरी सिंपल वे ऑफ रिकॉर्डिंग. डेट कॉलम में डेट डालनी है. पर्टिकुलर्स कॉलम में हम जिस कस्टमर को सेल कर रहे हैं उस कस्टमर का नाम डाल देंगे. इनवॉइस नंबर कॉलम के अंदर इनवॉइस नंबर डाल, विच वी नीड नॉट, विच इज नॉट, डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सप्लेनेशन. और अमाउंट कॉलम में अमाउंट है हमारे को. सो इफ़ यू लुक एट इट, इसको सेल्स बुक में रिकॉर्ड करना इज़ वेरी सिंपल. एज यू कैन सी, वी जस्ट हैव टू राइट दीज 4 एंट्रीज इन द सेल्स बुक और ये हमारी सेल्स बुक की रिकॉर्डिंग हो गई. नाउ इसको हमने पोस्ट करना है, इसकी लेजर पोस्टिंग करनी है हमने. अब इसकी लेजर पोस्टिंग करने के लिए व्हाट वी डू इज़ कि इसको जो है हम इंडिविजुअल अकाउंट्स जिसके भी आ रहे हैं, दैट मीन्स रॉबर्ट एंड कंपनीज अकाउंट डेबिट करेंगे 10,000. एंड इफ रॉबर्ट एंड कंपनीज अकाउंट इज ऑन पेज नंबर 223 ऑफ अवर लेजर फोलियो, देन हम यहाँ पे रॉबर्ट एंड कंपनी के अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखेंगे टू सेल्स 10,000 रुपीज़ डेट डालने के बाद. और यहाँ पर फोलियो में डालेंगे फोलियो 223. दैट मीन्स इसकी पोस्टिंग 223 पेज पर हुई है. सिमिलरली एमएनसी कॉर्पोरेशन के डेबिट साइड पे वील पोस्ट दिस एंट्री टू सेल्स, अमाउंट इज 25,000 रुपीज़. डेट कॉलम में डेट डाल देंगे और यहाँ पर हम फोलियो जो है
ये सेल्स बुक के अंदर फोलियो लेजर फोलियो के आगे डाल देंगे 181 विच इज़ द पेज ऑन विच एमएनसी कॉर्पोरेशन का अकाउंट है। सो वो यहाँ पे डल जाएगा 181। नाउ द पोस्टिंग इज कमिंग फ्रॉम सेल्स बुक। सो जो लेजर अकाउंट के अंदर है वहाँ हम सेल्स बुक का फोलियो डाल देंगे यहाँ पर। लेट्स सपोज दिस इज सेल्स बुक फोलियो का पेज नंबर 20। सो ये पेज नंबर 20 इन दोनों जगह पर डल जाएगा। इस तरीके से एक्शन कंपनी के डेबिट साइड पे विल पुट 8,000 रुपीज़ ऑन द डेबिट साइड एंड उसके फोलियो कॉलम में हम लिखेंगे पेज नंबर 20। और जो सेल्स का लेजर फोलियो कॉलम है जहाँ पर एक्शन कंपनी का अकाउंट है पेज नंबर 95, तो वो 95 हम वहाँ पे डाल देंगे। सिमिलरली जॉन्स के यहाँ पर 32,000 रुपीज़ का हम डेबिट करके डेट डाल देंगे एंड 20 नंबर फोलियो में डालेंगे उसके। एंड पी जॉन एंड सन्स का जो लेजर अकाउंट है दैट इज़ ऑन पेज नंबर 133, उसको जो है हम इस बुक के फोलियो में डाल देंगे। नाउ व्हाट नेक्स्ट? इफ़ यू लुक एट इट, हमने चारों ट्रांजैक्शंस का डेबिट साइड पोस्ट कर दिया। सो डेबिट साइड ऑफ ऑल द 4 एंट्रीज वी हैव पोस्टेड। सो नाउ हमने क्रेडिट साइड पोस्ट करना है। सो अब क्रेडिट साइड इंडिविजुअल हम पोस्ट नहीं करेंगे। एट द एंड ऑफ द मंथ विल टेक द टोटल ऑफ द सेल्स। दैट्स अगर हम इन 4 एंट्रीज का टोटल करते हैं द टोटल टू 75,000 रुपीज़ एंड हम एक कंसोलिडेटेड एंट्री सेल्स अकाउंट क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय सेल्स बुक सेल्स फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2024। सो दैट वील राइट हियर एंड ये 75,000 रुपीज़ सेल्स अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। सो दिस वुड कंप्लीट अवर डबल एंट्री लेजर पोस्टिंग ऑफ दीज 4 एंट्रीज। नाउ ये 4 एंट्री हैं तब भी कितना सिंपल हो गया, सिंपली लिखना है और इसकी इंडिविजुअल अकाउंट में पोस्टिंग करके कंसोलिडेटेड एंट्री सेल्स में डाल देनी है। एंड इफ दीज एंट्रीज आर 10,000 देन कट यू विल कीप ऑन रिकॉर्डिंग दिस इन द सेल्स बुक। सबकी एक एक डेबिट साइड की पोस्टिंग जाती जाएगी सबके अकाउंट्स के अंदर और एंड में मंथ एंड में टोटल अमाउंट जो है हम सीधा सेल्स अकाउंट में डाल देंगे, सिर्फ एक एंट्री डालेंगे। सो इफ़ यू कंपेयर इट विद द मैनर विच वी आर डूइंग अर्लियर, दिस डेफिनेटली बिकम्स मच मोर ईजी। So when we are maintaining the sales book, then credit sales would be recorded only in the sales book. They would not be recorded in the journal in that particular case. So जितनी भी credit sale की entries हैं वो journal में नहीं record करी जाएंगी, they'll only be recorded in the sales book. और ledger posting as we have just seen will be individually debiting the individual accounts और consolidated entry जो है that will credit to the sales account. The end of the month we will do this particular consolidated entry will credit to the sales account. Now ये जो हम मंथ के एंड पे कह रहे हैं ऐसा कोई रूल नहीं है मंथ एंड का। दिस इज जनरली इट इज़ डन कि मंथ एंड पे किया जाता है। देयर कैन बी अ सिचुएशन वेयर द सेल ऑफ द कंपनी इज सो लार्ज दैट इंस्टेड ऑफ एंडिंग टिल द एंड ऑफ द मंथ वो चाहते हैं कि हमें को डेली सेल फिगर मिलती रहे। सो व्हाट दे कैन डू इज सेल्स बुक का डेली, लेट्स सपोज उनकी डेली ही 1000 ट्रांजेक्शन हो जाती हैं। सो डेली सेल बुक की 1000 ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड हो जाएंगी सेल बुक के अंदर, सबकी इंडिविजुअल डेबिट चला जाएगा सबको और उसका कंसोलिडेटेड सम जो है वो सेल का टोटल अमाउंट जो है वुड ऑन अ डेली बेसिस सेल्स अकाउंट में चला जाएगा। तब भी व्हाट यू वुड फाइंड इज अगर हम डेली भी इसका कंसोलिडेटेड सम ले रहे हैं तब भी द प्रोसेस बिकम्स वेरी ईजी एंड वेरी सिंप्लीफाइड। बट देन जनरली द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन जितनी होती हैं तो मंथली बेसिस सफाइसेस। सो जनरली द मंथ एंड पे सेल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, but then keeping upon situation to situation there can be some other manner also of consolidated entry getting posted, some other period also, that means not manner but period alag ho sakta hai। instead of month it can be daily also, possibility can be there or weekly possibility can be there, but generally it is monthly basis। aapke purpose ke liye monthly hai, just to understand the concept I am explaining this particular thing। so this is regarding the basic concept of sales book। as we have seen sales book के जो basic columns हैं वो ये 5 column हैं, which is date, particulars, invoice number, ledger folio and amount, and the recording becomes very simple as you must have just observed। so that is about recording of credit sales। in the next session we are going to take up the complexities which arise when the invoicing includes not just the basic product, if there is something else included in the invoice, then how do we go about it? Thank you, thanks a lot, and please watch our 5B also in continuation of this so that you can understand the entire gamut of sales book। Thank you, thanks a lot.